जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई तो चल फिर पड़िए, तुम पे करिए या मरिए। हाँ कोई तो चल फिर पड़िए, तुम पे करिए या। Narpat Singh ji, our principal sir, Mr. Harish Chaudhary, all our respected teachers and parents. I welcome our chief guest, Mr. Narpat Singh ji Arnai, Buddhijeevi Prakosht BJP, who is working towards connecting young minds to strive towards success and through his intellectual work. Sir, we are grateful to you for accepting our invitation and becoming chief guest of today's event. सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इसी उम्मीद के साथ भुलाकर सारे गम आप सभी का स्वागत करते हैं हम। और साहस को दर्शाता है, बीच में सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है, और नीचे हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ध्वजारोहण के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि एवं माननीय प्रधानाचार्य and achievements. It is really a very pleasant feeling on this Independence Day celebration morning. Everybody is filled with patriotic spirit. To enhance this feeling, our disciplined scouts and guides with the school committee members will perform drill marching. So please boost them with claps. The second order represents the core teaching of the students. Michael teachers and management as per the plan. The white uniform represents peace and harmony as a message of brotherhood. The second body represents the core committee of the students. The head of the committee has head boy, Manchu, head boy, Sushiko, and the selected students. Ramesh House, which is popularly known as Q House, is following the central committee with the flag carried by House Captain Manjunath Joshi, Vice Captain Ramesh. Patel House, also known popularly as Green House, is following Raman House. They have flag carried by House Captain Ganpati and Vice Captain connected to nature and money. Red House, Vivekanand House, which is also known as Red House, is following Patel's sacrifice, victory and honor. These students are known for their togetherness and unity as they stand for each other. Yellow House, which is also known as Kalam House, is following Vivekanand House with their flag carried by House Captain Manisha and Vice Captain Rakesh. It motivates us to stay forward towards our destination with full स्काउट एंड गाइड्स एक फिटनेस से ये संगठन है और ये विश्व के काफी देशों में चल रहा है। यह पर्यावरण प्रेम संगठन है और जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। स्काउट एंड गाइड साहसी होता है, स्काउट एंड गाइड इंस्पायर होता है जो आपकी हर संभव मदद करता है। We have completed the march. ओम दीप ज्योति परम ज्योति
దీపజ్యోతి జనార్దన దీపుహర్తమే పాపం ఆరోగ్యం సుఖ సంపద ద్వేషబుద్ధి వినాశాయ ఆత్మజ్యోతి ప్రవేశాయ గురుర్జ్యోతి నమస్తుతే నమస్తుతే. Here is the finishing ceremony and it signifies purity, goodness and goodness. The presence of light means the non-existence of darkness and evil forces. Have a big round of applause for them. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को प्रथम निमंत्रण देते हैं। हाँ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती, हाँ तेरे ही आने से Please give them a huge round of applause to boost their energy. त्वरा
झुंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो भान भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। Dalpal Singh ji to come over the stage and hand over the gifts to the students. For that, I would like to call Harshita, Doctor of Manohar Lal. Round of applause for Harshita. So she is not here. So for that, I would like to call her class teacher. Her brother is there. Okay, her brother. She makes her parents, her teachers, her school proud. Next we have Hitesh Kumar Chaudhary, son of Mangaramji Chaudhary. His parents are there. Please come over the stage. Of the students, teachers, and their parents also. Next we have Saroj Vish. हाँ सर सर जी सर And thank you to the teachers of class 10, each and every teacher. There is no sound, something is silent. Can you make it fast? Alive? As well as they inspire the rest of the students of DIS to be named Principal Sir and Honorable Chief Guest of today's program. मधुर मिलन
भले कान्हा किसी को पीस मिले, मन तो राधा के ही प्रेम के है फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, कितना से मिलती है भूल के हर बंधन, ओ कितना की माला की जपती है वो जोगन। I'm requesting, please, 100 out of 100. If you will not put your hands together, I would like to request Dalpa. Are you ready for this? For the next session, I think 2 or 3 students, or maybe 4 or 5 students, get 100 out of 100 marks. Maybe get district marks. All of you ready? For someone it is very difficult task, but for the teacher. लाइन आपको बता रहा हूँ कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या जो है वो सबसे महत्वपूर्ण धन है और यहाँ मेरे सामने बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो 100 मार्क्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है और यहीं पे अगर आप कंटिन्यूटी पे लैकनेस नहीं लाते हैं तो 100 स्कोर करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। टाइम का मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी, ये 2 फार्मूले आपको अपनी लाइफ में अप्लाइड करना है। आप हर जगह पे अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस बार भी 2-3 बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे और उन बच्चों। Good morning, students. Good morning, ladies and gentlemen. Respected chief guests, respected very
pleasant moment. Here we are celebrating 76th Independence Day of our country, India. It's a pride for us. Along that, we are celebrating 75th anniversaries of this Independence Day event. स्वतंत्रता दिवस, उसके साथ में ही स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ. Dear friends, students, we got this opportunity after sacrifice of thousands our forefathers, leaders, martyrs, who sacrificed their whole life. Then we got this opportunity, this moment, and we are celebrating this event now freely as a freedom. Nowadays, India is a big one, largest country in the world, democratic country in the world. We have completed this 75 years. If we look back at this journey of 75 years, see, there are so many proudable events, moments which we have, Indians have. During this 75 years, in so many things, we have become dependent. There are so many examples in the field of medicals, science, inventions, technical fields. As we say, in all worlds, around the world, there are topmost of all companies, of the topmost all technical fields, technical companies, which are represented by our Indians. So, during the COVID, thanks to our scientists, doctors, paramedical force, those who have conducted in such a nice way the world's biggest vaccination programs with our own vaccines. This is the achievement that we can proud. Along to give securities, protections from the enemies who are ready to help our Indian Army, BSF, paramilitary forces, which all are ready to help to give the protection circumstance when India will complete 75 years of independence. We will celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, on that we have the slogan of Har Ghar Tiranga, Har Haath Tiranga. And as we know, today, since last 3 days, all countries, they are having where we are looking at. So it's a very proudable moment for us. Along that, we are celebrating this with enthusiasm. Dear friends, what we have achieved during these 75 years, we have to now, all world is looking towards us, we have to do more effort. And now we have to try to come on the front as a developed country. अब तक हम विकासशील देश हैं और हमारे को विकसित देश की श्रेणी में आना है. तो फॉर दैट इट्स आवर ड्यूटी फॉर ऑल आवर सिटीजन्स, आवर टीचर्स और ऑल स्कूल holders, students, we have to work with the more dedications, with more honesty. And we have to prove in the front of all world. As we are Sri Lanka, Pakistan, our neighbor countries are facing that much problem, but due to proper management of our government, our peoples, we are safe in this situation where even America is also bad. All students who have scored 90 and 90 plus. After this short study, as we have passed
Corona situation, during that most probably school were closed, our teachers have done effort to online classes. Half of the session they have run face-to-face classes. After that they have did this task, and I hope in the next year it will be double. The numbers of students and numbers of my team members, those who have prepared these students in a very short time. हमारे पास में बहुत ही कम समय था, स्कूल की कंटिन्यू छुट्टियां आ रही थी. Students, again I would like to thanks to Honorable Chief Guest Sir, who has given their precious time and represent here with a single call and give their timing here. Again, thanks to all to be participate, to be present here in this precious moments. Thanks, have a wonderful day. Goals of Indian militants are so worthy that it's glorious even to fail. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India।
people whose spirit has not been enchained? Who can destroy a people whose spirit has not been destroyed? मतलब जिनकी आत्मा अगर गुलाम नहीं है, ये हमारी आत्माओं में वो झलकती आज़ादी थी जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने फांसी के फंदे पे झूल गए, अपने सीने पर बंदूक की गोलियां खाई, तब यह आज़ादी हमें मिली है। एक लंबे संघर्ष के बाद में यह आज़ादी हमें मिली है। और इन 75 साल में इसे मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी को भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक पोइम के थ्रू कहा था कि अभी यह आज़ादी अधूरी है। हमारे ड्रीम्स क्या थे उन आज़ादी के, हमारे जो लीडर्स थे उनके ड्रीम्स क्या थे, उनका सपना क्या था, उनका विजन क्या था, किस प्रकार का राष्ट्र हम चाहते हैं। अगर लेके जा रहे हैं तो उनका सपना था कि भूखमरी से आज़ादी हो, असुरक्षा से आज़ादी हो, प्रदूषण से आज़ादी हो, घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष से आज़ादी हो, सामाजिक असमानता से आज़ादी हो, राजनीतिक असमानता से आज़ादी हो, आर्थिक असमानता से आज़ादी हो। आज़ादी के मायने बड़े होते हैं, जिसमें हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका डेवलपमेंट हो, तभी वो आज़ादी पूर्ण रूप से आज़ादी कही जा सकती है। जब तक हमारे हजारों लोग भूख, अशिक्षा और बीमारी से पीड़ित है, तब तक आज़ादी अधूरी है। बच्चों, टीचर्स और बाकी respected citizens of this country, I would like to request you, we should fight for the freedom of this nation, to establish and achieve the whole freedom for the nations. This freedom definition is a holistic, ये जो स्वतंत्रता की परिभाषा है वो एक होलिस्टिक है, समग्र है। हर तरह से देश आज़ाद होना चाहिए, हर तरह से इस देश में शोषण मुक्त होना चाहिए, इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए, इस देश में जो जातिवाद का जहर है हमारे राजनीति में आया हुआ वो खत्म होना चाहिए। इस देश की जो आर्थिक असमानता है, एक तरफ करोड़पति है, एक तरफ गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं, वो समानता खत्म होनी चाहिए। जो जाति आधार पर भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए, जातिवाद और सांप्रदायिकवाद खत्म होना चाहिए, भाषावाद और प्रदेशवाद खत्म होना चाहिए। जितने भी ये पैरोकियल मेंटेलिटी, नैरो मेंटेलिटी, संकीर्ण मेंटेलिटी से हमें इस देश को आज़ाद करना होगा, तभी ये देश सही मायने में आज़ाद होगा। इसके लिए लंबे संघर्ष की जरूरत है। हमारे देश की ये फौजा है, आज भी जो फौजें रक्षा कर रही है, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में जब ये कहते हैं कि हम बहादुर हैं, दुनिया में कहीं आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि 90,000 उनके फौजियों ने बंदूकें फेंक के हाथ समर्पण किया हमारी फौज के आगे। कहाँ गई थी तुम्हारी बहादुर फौज? तुम आज जो करते हो, इस देश पे हमलावर होते हो, इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हो। क्या तुम्हारी हिम्मत है ये? फिर भी हम कहते हैं कि हम विश्व शांति चाहते हैं, इसलिए हमला नहीं करते हैं। कहाँ गई थी दुनिया में ऐसा? हमारा जब भी एक भी फौजी, ऐसे हजारों उदाहरण है, अगर चारों तरफ पाकिस्तान की फौज से घेरा गया तो अंतिम समय तक उसने हाथ नहीं तो पैरों से भी बंदूक चलाई और वो लड़ता रहा। और इनके 90,000 सैनिकों ने हाथ बंदूक को फेंक के हाथ ऊंचा कर लिया। ये इनकी बहादुरता है। कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस महान राष्ट्र का? कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस शक्तिशाली राष्ट्र का, जिसकी संस्कृति और वैभव बहुत पुराना है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसके मूल्य और आदर्श बहुत पुराने हैं। पूरी दुनिया में एक के बाद एक साम्राज्य नष्ट होते गए। सऊदी अरब से जो तलवार चली, सब के सब झुक गए। अरे आपका हिंदुस्तान राष्ट्र कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं। किसी के आगे सर कटने के बाद में भी आपके कभी झुकी नहीं। वो हिंदुस्तान राष्ट्र है। तो हमारा सपना है कि सोने की चिड़िया बने, तो हमारा सपना है कि विश्व गुरु बने, उस राष्ट्र को कोई झुका नहीं सकता। उसके लिए हमारे मोदी जी अभी भी ये प्रयासरत है पूरी तरह से कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति बने। क्या है वो नई शिक्षा नीति? आज तक हमारा राष्ट्र पैदा किया जाए, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, वो इंटीग्रेटेड है, वो होलिस्टिक है, वो आपका समग्र शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास करता है। उस शिक्षा नीति में इसके तो ये राष्ट्र का ऐसा निर्माण होगा जिस राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होगा। हम एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उसके लिए ये नई शिक्षा नीति है।
तो वो राष्ट्र जिसकी हजारों साल की सभ्यता, अमेरिका के एक राष्ट्रपति यहाँ आते हैं, ओबामा जी जब यहाँ आए तो वो अपने जेब में हनुमान जी का फोटो रखते थे, और उसके कारण है कि मैं राष्ट्रपति बनारस जब यहाँ आए तो मैं आज ऐसे राष्ट्र में जा रहा हूँ, पहली बार यहाँ आए, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता, जहाँ के मूल्य, जहाँ के आदर्श, जहाँ का दर्शन, सब कुछ अद्भुत, अलौकिक और दिव्य है। पूरा विश्व उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बच्चों आपकी संस्कृति है, इस प्रकार के आपके पूर्वजों ने त्याग और बलिदान किया है। एंड कीप इट माइंड, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। इसको कभी भी पैरेलल मत समझना कि हम जो पश्चिम का अनुकरण करके हम आधुनिक हो गए, कभी नहीं। आपको अपनी जड़ों में जाना होगा, आपको अपने इतिहास में जाना होगा, आपको अपने मूल्य और आदर्श, सभ्यता और संस्कृति में जाना होगा। आपके जो ग्रामीण हर भाई काका बड़े के रूप में बुलाता है, हर में आपस में रिश्ते और सौहार्द है, वो संस्कृति की पुनर्स्थापना करनी होगी, अपने परिवार सिस्टम की पुनर्स्थापना करनी होगी। आपको पता है कि आपके तो पूर्वज वीरमदेव जी, सोनग्रह चौहान, जब उनको सौंपा गया बादशाह ने कहा पूरा हिंदुस्तान का आधा साम्राज्य मैं आपको देता हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लीजिए और समझौता कर लीजिए। और जाड़ों तब उन्होंने क्या कहा था कि आब फाटे कि आकाश फट सकता है, खरा उल्टे धरती उड़ सकती है, अवड़ो उगे बाण सूर्य उदय से उगेगा, सर पड़े और धड़ लड़े तद छूटे जाड़ो, जो बेटी परणु तुर करी तो कुल लाजे चौहान, अनियाड़ लाजे भाटिया। ये आपकी संस्कृति कितना दृढ़ शक्ति है, इतनी अद्भुत शक्ति है। वो जाड़ोर की अपना इतिहास है, न झुके न मरे। जब युद्ध की अंतिम घड़ी आई कि फौज चारों तरफ से घिर चुकी है, सेनाएं ऊपर आ गई है, तो उसके पहले रात को मृत्यु उत्सव मनाया गया और नाचे डांस किए कि हम साथ मर रहे हैं और साथ अगला जन्म भी साथ लेंगे। तो बाद जबरदस्त जोर हुआ और बाकी जो पुरुष थे उन्होंने केसरिया साफा पहना। केसरिया साफा का मतलब क्या होता है? हम एक कट के एक सौ को काटेंगे, मर जाएंगे और कभी भी झुकेंगे नहीं। तो हजारों की फौज बादशाह की काटी गई और वीरमदेव सोनग्रह का सर पड़ने के बाद में धड़ लड़ा। हालांकि वो सती थी, उसका सर लेके आए, जो उनकी रानियां वगैरह आई थी लेके गई और उसके साथ उसको लड़की भी सती हुई। और यह संकल्प शक्ति की आज जरूरत है। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए वो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए मनोबल की जरूरत है। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा था, I would rather pass through the fire than return home with my goal unattained. मैं आग के आर पार निकल जाऊंगा पर जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता वापस घर नहीं लौटूंगा। ये बुद्ध भगवान जो महाराजा थे, राजकुंवर थे, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा राजद्वार खोल के अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, अपनी शिक्षा के लिए वो जंगलों में भटके और फिर आज आदि पूरी दुनिया का हेलो। तो जैसे बुद्ध भगवान ने कहा था I would rather pass through the fire than return home with my goal unattained. मैं आग के आर पार निकल जाऊंगा और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता वापस घर नहीं लौटूंगा। इतनी महान शक्ति थे, राजकुमार थे, सोने के महल में रहते थे और सिर्फ अपनी शिक्षा के उद्देश्य से, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो गए और महात्मा बने और आज जी वियतनाम के राष्ट्रपति प्रताप थे, उसको उन्होंने गुरु घोषित किया। उसकी मां ने कहा कि बेटा वहां की मिट्टी लाना ताकि हमारे यहाँ पे हजारों हजारों महाराणा प्रताप पैदा हो। उन्होंने जिस विपरीत परिस्थिति में संघर्ष किया बच्चों, उसी विपरीत परिस्थिति में आपको भी संघर्ष करके कभी भी, जैसे प्रधानमंत्री एक मुझे याद है यूके के प्रधानमंत्री आए और बच्चों को एक भाषण देने के लिए आए, तो उन्होंने उनको कहा गया भाषण दीजिए, तो उन्होंने सिर्फ 3 लाइन में कहा, माई चिल्ड्रन नेवर गिव अप, माई चिल्ड्रन नेवर गिव अप। मतलब क्या? कभी भी संघर्ष के रास्ते में पैर पीछे मत रखो। अगर आपको कलेक्टर बनना है, अगर आपको एसपी बनना है, आपको प्रधानमंत्री, आप में से प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे और दुनिया का नाम हिंदुस्तान में रोशन करोगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको जब इतनी अच्छी लीडरशिप, संस्था प्रधान आपके, चॉइस, मैं जब भी आता हूँ हमेशा देखते पैरों पे खड़े ऊपर से नीचे तक ध्यान रखते हैं ताकि आपका कैरियर, आप ऐसे स्टूडेंट्स बनो कि पूरी दुनिया में आप जिस फील्ड में जाओ पूरी दुनिया में टॉप हो, न सिर्फ हिंदुस्तान में टॉप हो, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी जाओ आप अपने सब्जेक्ट में टॉपर हो। चाहे आप वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जिस फील्ड में भी आप हो, अपना नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, इस संस्था का नाम रोशन करो। क्योंकि इसके संस्था प्रधान और तमाम टीचर्स है, इतने समर्पण से काम कर रहे हैं, इतने त्याग और बलिदान से काम कर रहे हैं, इतना वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी संकल्प शक्ति है उनमें, जो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति और मूल्य और आदर्श को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं।
आज डिवाइन स्कूल का जो रिजल्ट देखते हैं जिला पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट आ रहा है और मैं शुभकामनाएं करता हूं कि पूरे इसको डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में इनके जो स्टूडेंट्स है वो टॉप पे जाए। ये मेरी शुभकामना है, पर उसके लिए वो संकल्प शक्ति की जरूरत है बच्चों। जो हमारे पूर्वज दिखाया करते थे, जो आपकी संस्कृति बताती है आपको, उसमें ही आपको जैसे वृक्ष की जड़ें काट लो तो वो कितना कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार अगर आप अपनी संस्कृति से कट गए, अपने रीति रिवाजों से कट गए, अपने मूल्यों से कट गए, अपने पेरेंट्स से कट गए, तो उस वृक्ष की बात ही कट जाओगे। कहाँ भी जाओ दुनिया में नाम जाओ रोशन करो, पर जहां भी जाओ, आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? अपने हिंदुस्तान ओरिजिन के, उनको कहा कि आई एम प्राउड ऑफ द इंडियन कल्चर, मैं भारत की कल्चर को महान समझता हूं और उसके कारण मैं आज यूके का प्रधानमंत्री बना। वेस्टर्न कंट्री जिसको दुनिया पे आधी दुनिया पे राज करती थी, वहां का प्रधानमंत्री आज एक इंडियन है। प्राउड ऑफ द इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन वैल्यूज एंड इंडियन फिलोसॉफी। That should be the contributions that Indian philosophy is having towards the development of the world. The so-called secularist हो, उसका सर ऊंचा हो, किसी का उसको डर नहीं हो, the mind is without fear, माइंड में किसी प्रकार का डर नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, कोई भय नहीं हो, ना बीमारी का भय हो, ना सुरक्षा का भय हो, ना किसी प्रकार की गरीबी का भय हो। हम ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जो हर व्यक्ति खुशहाल हो, ऐसी हमारी कामना है। तभी तो वह आजादी, जैसे कभी जी ने कहा था, यह आजादी अधूरी है, तब तो वह आजादी वास्तव में साकार रूप में आजादी होगी। पर वो सब आपके बच्चे या आपके कंधों में भार आने वाला है, ये सब आपको करना है। वो हिम्मत आपकी त्याग और बलिदान काम आएगी, वो आपकी शक्ति सामर्थ्य आम जनता का सहयोग काम आएगा। वो एक व्यक्ति का काम नहीं है। राष्ट्र के समक्ष जबरदस्त संकट और खतरे हैं, चारों तरफ राष्ट्र संकटों से घिरा हुआ है। जो हमारी विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं, वो किसी नाम से राष्ट्र को बांटना चाहती है, चाहे जाति के नाम से हो, धर्म के नाम से हो, चाहे प्रदेश के नाम से हो, किसी ने सुरक्षा अक्षुण रहे, वो आप सबकी मेहनत से रह सकता है। और विशेष तौर से एक बार जोरदार ताली बजा के इन सबका मोटिवेशन करें। प्रोग्राम में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण ये थोड़े हतोत्साहित हो गए होंगे। एक बार जोरदार तालियों से एक बार शुरुआत करें नई सिरे से। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया।
India, fire at will. I repeat, fire at will. समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गाड़ी थोड़े अनाड़ी है, थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी।
है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम दिया झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम दिया मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती है वतन उनको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे है वतन मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वंदे मातरम 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 तेरी मिट्टी में मिल जाना गुल बन के मैं खिल जाना इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाना तेरे खेतों में लहराना इतनी सी है दिल की आरज़ू जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा ये देश है वीर जवानों का लबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों का कहना ये देश है दुनिया का गहना क्या चौड़ी छाती वीरों की या बोली शक्लें हीरों की या गाते रांझे मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए